complete till midterm. Okay, so this is where your course after the midterm starts. But since we did not cover that one topic before midterm, so it would be included in your exam in the final. Okay. Basically, otherwise, officially, this is where your final term course starts. Start करें. It's about standard cost and balanced scorecard. ठीक है? First of all, you need to tell me what is standard. Standard क्या होता है? Standard क्या होता है? Benchmark. Benchmark क्या होता है? Evaluate करते हैं क्या? Minimum? Yeah. It's not minimum. It's normally the best one. It's normally the best one. So it's something which you need to achieve. ठीक है? So it's a standard which you need to achieve. It's a benchmark जो आपने achieve करना होगा. Okay. So when we talk about standard cost, so actually we are talking about costs which have been benchmarked. जिसको हम लोग as a benchmark इस्तेमाल करते हैं. यानी ये आपका एक ideal है. This is something which is ideal. Now standards are benchmarks or norms for measuring performance. You would normally measure the performance according to this benchmark. इसके मुताबिक देखेंगे कि आप काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. Okay? So there are two types of standards actually. One, we have a standard cost, and the other one is the standard quantity. हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक standard cost या price, ठीक है? एक price, एक quantity. Sorry, आगे पीछे. ठीक है? Quantity is over there and price is. So we have actually two things: standard price, standard quantity. ठीक है? Price, quantity दो चीजें. अब standard price क्या चीज होगी? Standard price वो होगी जो कि which you should pay for something. Remember, it's not the price in the market. It's not the price which is currently over there. It's the price which you should pay. For example, I am manufacturing a marker. तो मैं कहता हूँ कि marker manufacturing कर रहे हैं, what would I need? I would need plastic for that. तो मैं एक standard अपना बनाता हूँ कि प्लास्टिक आप जब भी खरीदेंगे आप 5 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे. Now that's your benchmark. जरूरी नहीं है कि मार्केट में ये रेट इन द मार्केट कैन बी lower or upper than, ठीक है? But this is a standard which I need to achieve. And normally in inflationary conditions, normally prices would move up. ठीक है? Seldom it would go down. बहुत कम होगा कि कम होगा. So now a cost or a price standards specify how much should be paid for. Now it can be plastic, it can be anything यार. Input में तो plastic भी आ सकता है इसके अंदर, ink खाली material तो नहीं है. It can be labor as well. You pay for labor ना. Labor की price होती है. What's the price for labor? What do we call it? उसका नाम wage rate बोलते हैं ना उसको. So standard wage rate भी होता है. कि this is standard wage rate. आपको चाहिए कि labor को इस rate के ऊपर hire करें. But then once again, shortages in the labor market would increase the standard wage rate or the wage rate in the market. Yeah, if there is unemployment, then you can actually find labor at a very low cost. किसी के पास काम ही है, सब बैठे हैं, आप कहेंगे यार वो कहेंगे मुझे 700 रुपए दिहाड़ी दो, आप कहेंगे नहीं यार 500 रुपए देता हूँ. अब उस बेचारे ने तो काम करना ही नहीं, तो उसका ज़ाया हो जाएगा आज का दिन, तो वो तो काम करने पे तैयार हो जाएगा. ठीक है? सो जरूरी नहीं है कि वही स्टैंडर्ड है. ठीक? वंस अगेन ज़्यादा या कम हो सकता है. जी हाँ, नॉर्मली एक आइडियल सिचुएशन होता है. So what would be the lowest, यानी हम किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, किसके पर्सपेक्टिव से आइडियल? देखिए, when we talk about price, a standard cost or a standard price, then of course when I would set the standard for my organization, it would be the lowest. But when I talk about quantity, इसके ऊपर कितना मटेरियल लगना चाहिए, मैं कहता हूँ यार आइडियली इसके ऊपर लगना चाहिए सिर्फ आधा किलो, फिर वेस्टेज हो जाएगा सारा. तो फिर then it would not be something which is the highest, it would be something which is the lowest. कि कम से कम quantity of material लगाओ, be efficient और इसको काम करो. ठीक है? Got the idea? Got the idea? Standard price, standard quantity. Quantity standards specify how much of an input should be used to make a product or provide a service. Once again, can be material, can be labor. Labor एक घंटे में कितने मार्कर बनाने चाहिए? ठीक, मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ as a standard, and then you try to achieve that. हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं, फिर एम्प्लॉइज या ऑर्गेनाइजेशन वो ट्राई टू अचीव दैट स्टैंडर्ड. अगर उसने अचीव कर दिया, दैट्स समथिंग गुड, आई वुड रिवॉर्ड यू. इफ यू डू समथिंग बेटर देन दैट, आई वुड स्टिल रिवॉर्ड यू, गिव यू इंसेंटिव फॉर दैट. इफ यू परफॉर्म पुअरली, आप ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपको पीनलाइज करूंगा. देन आई वुड पीनलाइज यू. आई वुड आस्क यू, क्यों मटेरियल आपने ज्यादा इस्तेमाल किया?
आप कहेंगे सर वो मटेरियल खराब हो गया था और मार्कर हम बना रहे थे, मार्कर खराब हो गया तो इसलिए मटेरियल ज़्यादा लग गया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी। If it is something which is logical, then it's fine. Otherwise, the manager who is responsible would be penalized for that. Got the idea? Standard समझ आ गया? थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दे दिया. Standard price, standard quantity, दो किस्म के standard. Let's move on. Now, we can have standards for labor. We can have standards for direct material, direct labor. You can even have standards for manufacturing overhead. Manufacturing overhead आप लोग किस तरह calculate करते हैं? What do you do for manufacturing overhead? एक बंदा बोले वो क्लियर हो। POHR तो POHR अगर आप निकालते हैं प्री-डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, तो वो रेट जितना कम होगा उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। तो मैं आपको पहले से एक स्टैंडर्ड रेट बता दूंगा कि ये रेट होना चाहिए, ठीक है? ओके, रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। तो एक्चुअल एक्टिविटी फिर कितनी होनी चाहिए, वो भी कम से कम होनी चाहिए, तो मैं उसका भी स्टैंडर्ड बना के आपको बता सकता हूं, ठीक है? सो वी कैन मेक स्टैंडर्ड्स फॉर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एंड इफ यू परफॉर्म बेटर देन दैट, देन इट इज समथिंग गुड और बैड? गुड, ठीक है? लेकिन डिफरेंस तो आ गया ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड इज ₹5, लेकिन आप ये काम मुझे करके दे देते हैं ₹4, so is it something good? Yes. Okay, it's something good, but it is different from standard. Different from standard, ना? Standard से differ कर दिया ना? Whenever it would differ from standard, that would be called as a variance. इसको variance, ठीक है? तो फिर ये वाला वेरिएंस अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, so what would I call it? I would call it a favorable variance. That would be a favorable variance. लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड आपसे कहूं कि ₹5 है and you perform at 5.5, तो फिर it would be a unfavorable variance, ठीक है? Got the idea? Got the idea? Favorable, unfavorable. दोनों आइडियाज क्लियर है? दोनों आइडियाज क्लियर है? Okay. Is this situation clear? Yes. Okay. अच्छा. अब whenever you perform according to the standard, तो हम तो कहते हैं बस सही है, everything is good. But when there is a variance, then that is a point of worry for management, higher management. अब higher management आपकी हर एक्टिविटी को नहीं देखती. Audit पढ़ा ना आपने? आप हर ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे. सैम्पलिंग करेंगे और उस ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे और फिर जहां पर आपको थोड़ा सा शक ज्यादा होगा उसको आप देखेंगे. So over here you not check each and everything, you check wherever we have a variance. So when you are performing according to a standard, this is the normal, this is the norm, ये मतलब ये normal situation. और जब भी आप इससे ऊपर या नीचे परफॉर्म करेंगे एक वेरिएंस क्रिएट हो जाएगा. And the management would actually look into it, whether it's a unfavorable or favorable variance. And then the management would look at it. ये क्यों हुआ? That is called management by exception. इसको बोलते हैं management by exception. It works in the same way like you have management by objectives. पढ़ा था? MBO. ठीक है? ये MBE, management by exception. ठीक है? अब management by exception में क्या होता है कि जब एक्सेप्शनल सिचुएशन आएगी उसको आप देखेंगे. एक्सेप्शनल क्या है? दिस इज नॉर्मल, स्टैंडर्ड इज नॉर्मल व्हिच यू नीड टू अचीव. सो एक्सेप्शनल वुड बी व्हेन यू परफॉर्म अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड, व्हिच मींस व्हेन देयर इज अ वेरिएंस. तो वो लोग वेरिएंसेस को चेक करते हैं, वो लोग हर चीज चेक नहीं करते. मैनेजमेंट वुड कॉल, वेरिएंस चेक करेगा, ये वेरिएंस है, अच्छा इस मैनेजर को बुलाओ, क्यों, व्हाई इज देयर अ वेरिएंस. तो फिर मैनेजर कहेगा कि सर वो मटेरियल शॉर्ट हो गया था और प्राइस हमें महंगी मिली. Whatever is the reason, जो भी. Got the idea? Management by exception. जी. Favorable variance की केस को भी चेक करेंगे. Favorable variance की केस को भी चेक करेंगे. ठीक है? चेक करेंगे. Price. If I say the standard is ₹5 per kilo, okay, and you buy material at ₹4 per kilo, is that something good? Yes, it is something good. Apparently, it is something good. लेकिन what is the other thing? Quantity as well. कि आपने मटेरियल खरीदा सस्ता,
तो अगर आपने सस्ता कर लिया तो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इनटू योर माइंड? क्वालिटी। हो सकता है उस परचेजिंग मैनेजर ने वेरिएंस को अच्छा करने के लिए मटेरियल का क्वालिटी खराब कर दी, तो क्या मार्कर अच्छा बनेगा? So it is something which you need to look at. So yes, we would look at both favorable, unfavorable, both. Got the idea? Got the idea? जाओ आगे, आगे जाओ. Okay, let's move on. So now, how this whole process works? ये काम किस तरह? First of all, you would make standard. ठीक है? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बनाएंगे ना कि किसके साथ इसको मैच करें. So we will begin from here. We will make a standard cost performance report. अभी थोड़ी देर आगे जाके देखेंगे ये कैसे बनेगा. ठीक है? So we will make a standard cost. Then we would work. We would do our routine work. जो भी काम आप लोग कर रहे हैं आप वो करेंगे. Differences आएंगे. You would analyze the variances. Variance आ रहा है कि नहीं? फर्क आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो आप लिखेंगे कि favorable है कि unfavorable. Unfavorable है, favorable है, क्यों आया? Why is there a variance? So you would identify questions. क्यों आ रहा है? क्या मसला हुआ था? ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, क्यों हुआ है? Receive explanations. Then the concerned manager would give you explanation कि ये क्यों हुआ इस तरह. सर वो हमें एक अच्छी डील मिल गई और हमने इसलिए मटेरियल हमें सस्ता मिल गया. That is a good explanation. हमने क्वालिटी खराब नहीं की, हमें वही मटेरियल हमें कम कीमत में मिल गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में आ गया था मार्केट के अंदर तो हमने परचेज किया. Okay, receive explanation, take corrective actions. But in case if it is something bad, वो आपसे कहे कि सर बस मटेरियल अर्जेंट में चाहिए था और मैंने खरीद लिया तो मुझे महंगा मिल गया, तो फिर यू विल हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन कि क्यों इमरजेंसी में आपने नहीं किया. आप एक महीना पहले खरीदते जो आपको मटेरियल चाहिए, आप देख रहे हैं कि स्टॉक लेवल कम हो रहा है तो आप उसको परचेज करें. सो यू विल टेक करेक्टिव एक्शन, कंडक्ट नेक्स्ट पीरियड्स ऑपरेशंस, फिर दोबारा से शुरू. सो दैट मींस इट कीप्स ऑन मूविंग इन अ साइकिल. ठीक है? गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया हाउ इट वर्क्स? ओके, लेट्स मूव ऑन. अभी स्टैंडर्ड बनाएगा वो, स्टैंडर्ड बनाएगा जी. वुड मेक द स्टैंडर्ड. क्या ये खाली अकाउंटेंट का काम है? नहीं, अकाउंटेंट तो सारी चीजें लिख रहा होगा. ठीक है? सो यस, ही वुड बी पार्ट ऑफ दिस बॉडी और कमिटी व्हिच वुड सेट द स्टैंडर्ड. बट अकॉर्डिंग along with the accountant we will have engineers जो वो प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं. We will have purchasing agents because they will be purchasing the material or they will be recruiting labor. ठीक है? Production manager क्योंकि वो प्रोडक्शन करता है, quantity used उसके हाथ में होता है, उसको पता होता है कितना क्वांटिटी इस्तेमाल करना है. Production managers combine efforts. So all of these people actually combine and then they set up standards. And that standard will be for your coming year, your period, whatever it's that. Got the idea? खाली अकाउंटेंट का काम नहीं है, ठीक है? खाली परचेसिंग मैनेजर का काम नहीं है, सब मुताबिक आप लोग काम करें. जी, सर. टॉप मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सेट करने में टॉप मैनेजमेंट उनका कोई रोल नहीं होगा. चलो टॉप मैनेजमेंट वैसे कर क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग. So actually ये काम उनका है. This is a routine work and they will be more concerned with the vision of the organization. ठीक है? कि वो आपने क्या करना है, strategy making, policy making, तो वो लोग ये काम नहीं करते. हाँ, they would look after it कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, but otherwise they would not be an active member of this standard making committee. जी. Wouldn't it be better कि हम मार्केट को अपना स्टैंडर्ड लेने या बेस्ट परफॉर्मर स्टैंडर्ड बनाने कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. इंडस्ट्री लीडर को आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं. ठीक है? लेकिन क्या आपको इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट लीडर मिल सकता है कि वो कितना मटेरियल अपने मार्केट में इस्तेमाल करता है और वो कितना का मटेरियल खरीदता है? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस आपने वहाँ पे अपना स्पाई छोड़ा हो या आप वहाँ के एक बंदे को हायर कर लें. ठीक है? उसको ज़्यादा लालच दे दें, ज़्यादा पैसे दे दें. बट दीज आर अनएथिकल थिंग्स तो मेरे हिसाब से शायद नहीं करना चाहिए. लेकिन बाय द वे सब यही करते हैं. सो यू कैन डू इट. ओके, सो इज इट क्लियर सो फार? ठीक है? दिस हैपेंस अ लॉट इन फूड इंडस्ट्री. ठीक है? जहाँ पे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में ये बहुत होता है जो आप कह रहे हैं.
So they normally do that. They would hire the master chef of one of the organizations and then they would know how to do it. तो वहाँ पे होता है, but still something underneath. Let's move on. Now, what sort of standard should we make? अब स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कि मैं आपसे कहूँ कि यार 4 रुपए का मटेरियल खरीदें और आप पूरे बाजार में ढूंढ के थक जाएं 4 रुपए का मटेरियल मिलता है? ठीक है? बहुत मैंने आपको बहुत टाइट रखा हुआ है, बहुत आइडियल किस्म के स्टैंडर्ड दिए। मैंने आपसे कहा है कि 1 घंटे में 10 मार्कर बनने चाहिए आपके, 1 घंटे में 10 मार्कर कहाँ से बन सकते हैं सर? तो वैसे ही करना। ठीक है? So you need to make. Should we use ideal standards that require employees to work at 100% peak efficiency? आप हर वक्त 100% peak efficiency काम भी नहीं कर सकते हैं। Or should we make standards which are more practical? Practical standards, ठीक है? ज़्यादा आइडियल तो नहीं होनी चाहिए जो आप अचीव ही ना कर सकें। अब आपको भी पता है हर चीज़ महंगी हो रही है और मैं आपसे कहूँ नहीं 4 रुपए किलो का मुझे प्लास्टिक स्टैंडर्ड है आप खरीद के देंगे। आप कहें सर 4 रुपए किलो कहाँ मिलता है? वो तो आज से 10 साल पहले मिलता था। So things like that. So you need to make practical standards that are currently attainable, जो अभी अटेन हो सकते हैं इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर with reasonable and efficient capital. ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल के 10 रुपए का मटेरियल तो हर कोई जो है आराम से 6 रुपए का मटेरियल खरीद के आपसे कहे कि yes sir we have achieved a favorable wages. So it should be something which is practical and not something which is ideal. ज़्यादा आइडियल ना हो ताकि उसको इतना ना हो कि आपके मैनेजर या आपके एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा ही बर्डन हो के काम करें। Got the idea? आगे जाएं। Let's move on. Now this is from where the real thing would start. पहले मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी calculations, ठीक है? So you need to pay attention. Now let's start with direct material. Now you know there are two things. मैं आपसे दो चीजें कही, price, quantity. दो चीजें कही थी ना? Price and quantity. Okay? Price standard. अब price standard normally अब price and quantity हर चीज में होगा. It is not only for your material. It will be for your material, for labor, for overheads. तीनों चीजों के लिए ये होगा price, quantity, price, quantity. Okay. Now price. Price standard would normally tell you कि किस price पे कोई चीज मिलती है. So it would be the final delivered cost of materials net of discount. Final price delivered, which means at your doorstep. ऐसा ना हो कि इसके अंदर फिर ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड करें। आप जब स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर लिखेंगे ना कि कितने का मटेरियल आना चाहिए 5 रुपए किलो का, तो इसके अंदर उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है प्लस नेट ऑफ डिस्काउंट। इसमें से जो डिस्काउंट वो आपको देगा, आप कहीं सर बल्क खरीद लेंगे तो हमें सस्ता पड़ जाएगा, तो उसने जो स्टैंडर्ड बना रहे होंगे उन्होंने पहले से बात दिमाग में रखी कि वो जब इसका स्टैंडर्ड बनाएंगे मटेरियल का प्राइस का स्टैंडर्ड, तो इसमें से उसको माइनस कर दें। डिस्काउंट्स पहले से माइनस, ठीक, नेट ऑफ डिस्काउंट, delivered, transportation added, everything added. This is the final price. Final price. ये हो गया standard price for material direct material. इसकी quantity कहाँ से आपको पता चलेगी कि standard quantity कितनी होगी? Standard quantity would be summarized in a bill of materials. जब bill of material आपके पास आता है तो उसमें आपको पता चलता है कि कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ. So the quantity के standard कितना होना चाहिए quantity का, that you would get from bill of materials. Okay, let's move on to labor now. चलो, पहले Six Sigma do you remember? याद है? हमने सीरीज पढ़ी थी Six Sigma. Standard एक बार. So what did they try to achieve? Efficiency. किसी को याद है? वो क्या करते हैं? किसको रिड्यूस करते हैं? Efficiency. लोवेस्ट क्या? डिफेक्ट्स को कम करता है। अगर आपको याद हो it was somewhere around 6 in a million or 6 in a million कुछ, ठीक है? तो वो डिफेक्ट्स को कम से कम करते हैं। That means efficient work है ना? डिफेक्ट्स कम से कम, effective भी है, efficient भी है। Okay, so now Six Sigma educates have sought to eliminate all defects and waste. अब Six Sigma अगर आप you are following Six Sigma, so you will be talking about almost zero defect, कि कोई defect ना हो. So they sought to eliminate all defects and waste rather than continually build them into standards. वो Six Sigma को अचीव कर रहे होते हैं। जब Six Sigma को अचीव करते हैं तो वो अपने डिफेक्ट्स को कम से कम करते हैं rather than building them into the standard. इसी चीज को वो स्टैंडर्ड के अंदर बिल्ड नहीं करते. So as a result, allowances for waste and spoilage that are built into standards should be reduced over time. तो फिर आपको
हर वक्त स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आप निकालते हैं या स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आप निकालते हैं उसको हर वक्त आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर जो वेस्टेज का एलिमेंट है उसको आप बार बार निकाल दें। ठीक है, सिक्स सिग्मा वाले कहते हैं कि आपका इफेक्ट जीरो होना चाहिए, डिफेक्ट। अब जब वो डिफेक्ट को जीरो करते हैं तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट डिफेक्ट्स। सो दैट मींस व्हेन यू आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आपने स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात की मटेरियल की, तो इसके अंदर आप लोगों ने डिफेक्ट की कोई चीजें नहीं देखी। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर डिफेक्ट होता है, मैं 10 मार्कर बनाऊं, उसमें से एक मार्कर खराब हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो उस एक मार्कर का जो मटेरियल है वो वेस्टेज। लेट्स से आप कहेंगे सर उस मटेरियल को दोबारा हम करके रख भी देते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो जो वेस्ट हो जाता है, इन इफ इट्स अ नॉर्मल लॉस, तो हम क्या करते हैं? इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस व्हाट डू वी डू? कॉस्ट को कम कर, अभी पढ़ा है, प्रोसेस से कम अभी पढ़ा है। कॉस्ट कम हो जाती है उससे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि वो रेवेन्यू से कुछ जनरेट हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपने तो मटेरियल तो वही इस्तेमाल किया 10 किलो। पहले आप उसमें से बना रहे थे 10 मार्कर, अभी आप बना रहे हैं 9 मार्कर, तो डिवाइड बाय 9 आप करते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ज्यादा हो जाएगी ना, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अगली बार सिक्स सिग्मा को फॉलो करते हैं, डिफेक्ट को कम करते हैं, तो चाहिए कि अपने स्टैंडर्ड में भी जो आपने कहा था कि क्वांटिटी लगेगी आधा किलो, उसको भी कम कर दे। वो यही कह रहा है एज अ रिजल्ट allowances for waste and spoilage that are built into standards should be reduced over time। तो आपको चाहिए कि हर वक्त स्टैंडर्ड को इंप्रूव करते हैं, इसको कम करते हैं बीच में से, ताकि वो जो वेस्टेज है वो बीच में से निकल जाए। गॉट दिस आइडिया? गॉट दिस आइडिया? ये बात सबको क्लियर है? आगे जाएं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। डायरेक्ट लेबर का स्टैंडर्ड। अब डायरेक्ट लेबर वंस अगेन दो चीजें, प्राइस, क्वांटिटी। डायरेक्ट लेबर की प्राइस क्या होती है? डायरेक्ट लेबर की प्राइस क्या होती है? वेजेस होते हैं ना, प्राइस। डायरेक्ट लेबर आपको कितने का मिलता है? ठीक है, सो डायरेक्ट लेबर का जो प्राइस है उसको हम लोग प्राइस नहीं, उसको बोलेंगे इट्स एक्चुअली अ रेट का स्टैंडर्ड ना, वो रेट का स्टैंडर्ड। ठीक है, वहां पे रेट का स्टैंडर्ड। अब रेट, अब इस मार्केट के ऊपर जो लेबर काम कर रहा है, क्या सारा एक किस्म का लेबर? नहीं, डिफरेंट किस्म का लेबर है ना। एक बिल्कुल मैनुअल लेबर होता है, एक मशीन के ऊपर खड़ा होता है, मशीन ऑपरेटर, एक सुपरवाइजर, या लेट्स से कोई और है जो डायरेक्टली काम कर रहा है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस मार्केट। एक इंजीनियर शायद काम कर रहा है, तो क्या इन सब का वेज रेट सेम होता है? नहीं। तो यहाँ पे जब आप स्टैंडर्ड बनाते हैं तो आप तो एक स्टैंडर्ड वेज रेट, एक वेज रेट, तो फिर आप क्या करेंगे? यूज आपने सिंगल ही करना है, लेकिन क्या करेंगे? Single rate will be used, but it would be mix of wages। ठीक है, आप कोई एवरेज वेज निकाल लेंगे कि एक मार्केट पर these 4 workers work, इसका 10 रुपए घंटा है, वो 20 रुपए घंटा लेता है, ये 25 रुपए घंटा लेता है। So just come up with a one wage rate which actually reflect all of these workers who work on this marker directly। ठीक है, got the idea? Got this idea? वेज भी हो गया। फिर क्वांटिटी, डायरेक्ट लेबर की क्वांटिटी क्या होती है? नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। ठीक है, द मोर आवर्स यू वर्क टू मेक अ मार्कर और द लेस आवर्स यू वर्क टू मेक अ मार्कर। सो दैट मींस इफ यू वर्क फॉर लेसर आवर्स टू मेक अ मार्कर और लेस टाइम, दैट मेक्स यू व्हाट? एफिशिएंट। अच्छा, ये बात दिमाग में रखिएगा कि ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है, बाद में हम इसको बोलेंगे कि ये एफिशिएंसी के लिए है। ओके, सो नाउ it's all about the time। So it is actually this quantity is actually a time stamp। ये टाइम है क्वांटिटी कि कितना टाइम लग रहा है, लेकिन we call it as a time standard। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि it's actually a efficiency standard। Okay, time standard। अब इसके ऊपर कितना टाइम लगा, how would we measure that? और what's normally in an organization, what is the way to measure it? किस तरह करते हैं? लेबर आवर्स करते हैं, लेकिन लेबर आवर्स किस तरीके से नोट हो रहे हो या किस तरीके से मेजर हो रहे हो? हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब आवर्स से टाइम स्टैम्प्स। एग्जैक्टली, आजकल तो वो है ना, पहले तो होते थे कि किस टाइम आया लेबर, लिखो टाइम, फिर किस टाइम जाएगा, लिखो टाइम। अभी नाउ यू हैव स्कैनर्स, या तो थंब इंप्रेशन या रेटिना पैड या लेट्स से स्कैन करते हैं,
ठीक है? So this is actually you will have to record the time या time standards का आपको पता चलेगा using time and motion studies for each labor operation. इसके अंदर कौन-कौन से काम हैं? इसके अंदर है कि प्लास्टिक बनानी है, इंक भरनी है, कैप को करना है, फिर बंद करना है, फिर पैक करना है. So actually there are 3 or 4 different types of labor involved. आप उन सब लेबर का टाइम एंड मोशन स्टडी करते हैं कि कितने घंटे में ये लोग कितने मार्कर्स को अपना वाला काम कितने काम में करते हैं, ठीक है? एंड देन यू कम अप विद अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 आवर, ठीक? You do that using a time and motion study which was used by कब इस्तेमाल हुई थी? किस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुई थी? हॉथॉर्न में इस्तेमाल हुई। याद आई? हॉथॉर्न स्टडी याद आई? ठीक है? टाइम एंड मोशन स्टडी। ओके, याद है? नहीं याद तो दोबारा देख लीजिएगा। एक बहुत मेजर किस्म की ब्रेक थ्रू था मैनेजमेंट में, आपको आना चाहिए। So let's move on. Now we've talked about direct material and indirect labor. What's the next thing? MOH या FOH? Factory overhead. अच्छा, factory overhead में जब हम लोग बात करते हैं, so actually we have 2 types of factory overhead. कौन-कौन सा? Fixed, variable. ठीक है, actual और वो भी applied भी है, लेकिन actual को तो हम लोग कहते हैं हम बिल्कुल साइड पे रखते हैं ना. We actually use applied, तो हम तो इस्तेमाल ही applied करते हैं, actual को तो हम इस्तेमाल नहीं. तो लेट्स टॉक अबाउट अप्लाइड। और अप्लाइड में फिर 2 किस्म के हो गए, हमारे पास एक फिक्स हो गया, एक वेरिएबल। तो अगर फिक्स है सो दैट रिमेंस फिक्स्ड, तो उसका वेरिएंस तो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे ना कि फिक्स है तो वो फिक्स में कोई फर्क आ रहा है कि नहीं, वो आगे जाके वो भी पढ़ेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल ओवरहेड। तो अभी जो यहां पे ओवरहेड की बात कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली अ वेरिएबल। वंस अगेन 2 थिंग्स, प्राइस, क्वांटिटी, दोनों चीजें होगी, प्राइस, क्वांटिटी। प्राइस क्या होता है? वेरिएबल ओवरहेड का कोई प्राइस होता है? रेट है ना, एक्चुअली इसका आप रेट फाइंड आउट करते हैं। तो जिस तरह डायरेक्ट लेबर का आपने मुझे कहा कि रेट है, तो इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड का भी देयर इज अ रेट। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट दैट रेट? POHR, ठीक है? सो द रेट इज द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड। वही POHR जो आपने पहले फाइंड आउट करते थे, वही सेम POHR आप यहां पे फाइंड आउट करते हैं टू फाइंड आउट द रेट। एंड दिस इज एक्चुअली my standard for variable. Got the idea? ठीक? फिर आप क्या करते हैं, इस रेट को किससे मल्टीप्लाई करते थे आप? एक्टिविटी के साथ। तो फिर वो एक्टिविटी क्या होती थी? Do you remember? राइट, तो होती थी एक्चुअल एक्टिविटी होती थी, लेकिन वो होती क्या थी? एक्टिविटी क्या थी? तो उससे जब मल्टीप्लाई कर वो क्या होती थी? वो कोई कॉस्ट ड्राइवर होता था या बेस होता था। अगर आपको याद हो इसका फॉर्मूला क्या था? वेरिएबल ओवरहेड का जब रेट फाइंड आउट करते थे, POHR। So what was the formula for POHR? Estimated overhead, total overhead cost for the whole year divided by estimated activity। ये और ये नॉर्मल एक्टिविटी कौन सी होती थी? नॉर्मल, जो सबसे नॉर्मल आपने इस्तेमाल करते थे, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी ओवर हियर वुड बी, ज्यादातर केसेस में वुड बी डायरेक्ट लेबर आवर्स, बट इफ यू वांट टू मेक इट अ जनरल टर्म, सो यू वुड से दिस इज दिस एक्टिविटी। जो ये एक्टिविटी यहां पे आप डिवाइड करते थे ना, ये वो वाली एक्टिविटी है, क्योंकि जब यहां से ये रेट आता था तो इस रेट को मैं मल्टीप्लाई करता था एक्चुअल एक्टिविटी के साथ। तो ये एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी है ना, लेकिन यहां पे एक्चुअल आ जाती थी। So this quantity is actually my activity. So that's why it is called as the activity. Got the idea? दोनों देखिए, सारे प्राइस की क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, लेकिन सबके नाम अलग अलग। मटेरियल में we call it as a price and quantity. लेबर में I call price as rate, quantity को time. ओवरहेड्स में मैं once again rate POHR और क्वांटिटी को एक्टिविटी। Got the idea? सब क्लियर हो गया so far? Everything is clear so far? जाए आगे, ब्रेक लेते हैं, बस रुके जरा, ये खत्म कर लो फिर ब्रेक, ठीक है? हम एक्चुअल काम स्टार्ट करने से पहले ब्रेक लेते हैं। So now let's make this standard. अब इस स्टैंडर्ड को बनाएं। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कार्ड बनाएं। We call it as a standard cost card. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में मैं क्या क्या चीजें लिखूंगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों चीज होती है ना, 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉस्ट,
तीनों चीजें लिख दी। और मैंने यहाँ पे क्या कहा था, दोनों का क्या, हर चीज का क्या है कॉस्ट का, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो प्राइस अलग, क्वांटिटी अलग, और प्राइस इनटू क्वांटिटी ये आपको दे देगा, और जो टोटल होगा दैट वुड बी द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर वन यूनिट ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस, व्हाटएवर इट इज। गॉट द आइडिया? अब चलिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आप क्या कहते हैं कि कितना क्वांटिटी इस्तेमाल, स्टैंडर्ड के मुताबिक आप कहते हैं यार 3 किलो लगेगा, 3 पाउंड, 3 पाउंड लगेगा, ओके। और 1 पाउंड आप क्या कहते हैं कि 1 पाउंड की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ इट वो होनी चाहिए 4 रुपए पर पाउंड। सो 4 रुपए पर पाउंड और 3 पाउंड लगेगा, दैट मींस 4 into 3 इक्वल्स 12 रुपए का मटेरियल इस 1 यूनिट ऑफ मार्कर के ऊपर लगेगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। लगना चाहिए, लगेगा नहीं, लगना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्ट लेबर। वंस अगेन क्वांटिटी और फिर मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब लेबर का आप लोगों ने कहा टाइम होता है ना, सो 2.5 आवर्स, और लेबर का प्राइस इज एक्चुअली दी रेट 14 पर आवर। रिमेंबर ये एवरेज है सबका, जितने भी लेबर का। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 35, 35 रुपए का लेबर इस मार्कर के ऊपर लगा। ठीक, आगे चले। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने कहा था दो चीजें, इसका रेट और इसकी एक्टिविटी। सो इसका रेट हमने निकाला 3 पर आवर, रेट निकला है, आवर्स या एक्चुअल एक्टिविटी 2.5, सो 3 into 2.5 7.5, this is the total 54. So according to the standard, 1 unit of the product or service which I am producing in my organization, the cost would be 54.5, and if I want to find out the standard price or the standard quantity for each and every component of cost, this is my standard cost card. इसको हम लोग बोलते हैं standard cost card. Clear हो गया? Clear हो गया? अब सर मुझे बताएं इसमें ये जो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, इसमें और जो पिछले सेमेस्टर में आपने बजट्स किए थे, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या रहेगा? सर ये पर यूनिट है और टोटल कॉस्ट ये पर यूनिट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड वुड गिव यू द इंफॉर्मेशन पर यूनिट, एक यूनिट। और जो बजट्स हम बनाते थे, आपको अगर याद हो तो इंफॉर्मेशन यहां से ही लेते थे ना, हम कहते हैं ना कि 1 यूनिट वुड रिक्वायर 3 पाउंड्स ऑफ मटेरियल एंड द प्राइस फॉर 1 मटेरियल वुड बी इतना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सो एक्चुअली वी आर यूजिंग द सेम इंफॉर्मेशन। हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन लेकर बजट्स, गॉट द आइडिया, गॉट दिस आइडिया? ठीक, our standard is the same as budget. Budget is set for total cost, standard is the per unit cost. Standards are often used when preparing budgets. So these are used to make budgets. Clear? Clear? Clear so far? Okay. अच्छा, break? यार ये करके ब्रेक ना करें। Sorry, ये आखिरी चीज है, इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। This is bit technical. तो मैं कहता हूँ कि इससे पहले हम इसको खत्म करें, इसको खत्म। ये एक लास्ट चीज है जो आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर देन वी विल टेक। ओके, हमने कहा दो चीजें होती हैं, प्राइस क्वांटिटी, दो चीजें आपने पढ़ी। अब याद रखें, प्राइस अलग स्टैंडर्ड है, क्वांटिटी का अलग स्टैंडर्ड। इन दोनों को अलग अलग क्यों रखते हैं, या इन दोनों को अलग अलग क्यों फाइंड आउट करते हैं, उसके दो रीजन। ठीक, द परचेजिंग मैनेजर इज रिस्पांसिबल, purchasing manager is responsible for what? For purchases, okay? Purchases का काम उसका। Production manager का क्या काम? Production manager का क्या काम? Production का, वो बनाता है ना, वो मार्कर बनाता है। Material इसका कौन खरीदता है? मैं। बनाता कौन है? वो दूसरा वाला। तो इसका मतलब ये है कि मेरा कंट्रोल किस चीज के ऊपर है? प्राइस के ऊपर। उसका कंट्रोल किस चीज के ऊपर है? क्वांटिटी। तो दोनों लोग अलग अलग है, इसलिए दोनों वेरिएंसेस को अलग अलग रखें। अगर मेरा प्राइस का वेरिएंस खराब हो गया तो आप किसको रिस्पांसिबल करेंगे? परचेजिंग मैनेजर को। अगर क्वांटिटी का वेरिएंस खराब हो गया तो आप किसको रिस्पांसिबल करेंगे? प्रोडक्शन मैनेजर को। दीज आर एक्चुअली टू डिफरेंट थिंग्स। काइंड इसको पॉज कर दीजिएगा, ठीक है? एंड दे जस्ट फिनिश इट क्विकली। सो देयर आर टू थिंग्स,
प्राइस क्वांटिटी, प्राइस के लिए कौन रिस्पांसिबल है? परचेज मैनेजर। क्वांटिटी के लिए कौन रिस्पांसिबल है? प्रोडक्शन मैनेजर। दो चीजों। अच्छा, सेकंड रीजन, क्लास सेकंड रीजन, पे अटेंशन, सेकंड रीजन, when I buy the material for this marker, do I use it at the very same time? I buy material, I put it in store, I use it when I start production. पहले दिन मैं कहता हूँ सिर्फ 100 मार्कर बनाओ यार, नहीं बनाओ जाता यार, कोई नहीं खरीदता 100 मार्कर आप बनाएंगे, लेकिन आपने मटेरियल खरीदा होगा 1000 मार्कर्स। तो इसका मतलब यह है कि मटेरियल बॉट, मटेरियल यूज्ड are two different things which are done at two different times. So that's why material price variance and material quantity variance are two different variances calculated differently, and two different people are held responsible for these variances. That's why these variances are determined separately for these two reasons. सही है? Done? Okay. So let's have a small break of 2 minutes and then we will meet up. Pay attention. अभी जो आप जो काम कर रहे हैं ना, वो जरूरी है इस पूरे चैप्टर के लिए, और अगर वो आपने सीख लिया तो आपका पूरा चैप्टर आसान, और अगर वो ना सीखा तो पूरे चैप्टर में आपको रट्टा मारना पड़ेगा फॉर्मूलाज का। मैं आपको फॉर्मूला बनाने का आसान तरीका बताऊंगा, देसी तरीका। Okay? Total. How you can learn the formula, but without learning it, you would actually know how to make the formula. So in the exam, what you can do is, the first thing you do is just make the formula on your own, और उसके बाद उसको solve करो। Let's start. हमने कहा दो चीजें हैं ना, price, quantity, दो चीजें, price, quantity, and it would be true for all three. Direct material, direct labor, variable overhead. सबके लिए ये काम करेगा। Price भी, quantity, एक चीज होगी डाल दी। Now, the price variance. And what actually is variance? अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बात की थी, so what was actually variance? Difference between actual and standard. सही है, ये भी हो गया. So difference, when we talk about price variance, so it is the difference between actual price, standard price. Difference between actual price, standard price. ठीक है? अगर quantity का variance है, so once again same thing. Quantity, लेकिन कौन सी quantity? Actual, standard. Got the idea? So when we move on to material, और हम कहें कि material का price variance, अब जरा इसके terms दोबारा लिखते हैं कि ये terms actually कौन से? So we said, ये किसने किया है? Okay. So we said material, we have a material price and a material quantity variance, ना? तो material का जो price variance है, वो मटेरियल की कौन सी प्राइस की बात करेगा? एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक? जो क्वांटिटी होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल में तो प्राइस क्वांटिटी दोनों वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। डन? ओके, लेट्स टॉक अबाउट लेबर। लेबर हमने कहा था कि लेबर का जो प्राइस होता है वी कॉल इट एज रेट। ओके, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे लेबर रेट वेरिएंस। और यहां पर हमने कहा ये टाइम होता है, और मैंने आपसे कहा था कि टाइम एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द एफिशिएंसी, सो इट वुड बी कॉल्ड एज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी। ये टाइम है, सो इट्स एक्चुअली एफिशिएंसी। ये भी हो गया। ओवरहेड, ओवरहेड का भी आप लोगों ने कहा आप लोग रेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स कौन सी कॉस्ट होती है? Indirect cost. Indirect cost, हम कहते हैं normally it's easier to control your indirect cost. ठीक है? Direct cost, इसका मटेरियल कम करूंगा, इसकी क्वालिटी खराब, थोड़ा मुश्किल। But when I talk about overheads, लाइट 2 की बजाय 1 लाइट लगा लो, 2 सिक्योरिटी गार्ड रखें, 1 रख लो, 2 सुपरवाइजर हैं, 1 कर दो, सुपरवाइजर को टाइम ज्यादा कर दो, ज्यादा टाइम काम करे, ब्ला ब्ला। So it's actually we can reduce our overheads. Overheads को control करना थोड़ा सा आसान है। Overheads tell you about your spending. ये आपको अपनी spending करना है। So that's why this price variance of overhead is actually called as overhead spending. ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं overhead spending, क्योंकि overheads
represent spending. On this side, once again, it's the quantity. जिस तरह लेबर का हमने कहा था कि लेबर एफिशिएंट है, तो यहाँ पे भी एक्चुअल आवर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं. सो एक्चुअल आवर्स once again direct labor hours. So once again, this is also your efficiency. So now there are six variances. Material price, material quantity. ये तो इस तरह है. लेबर की प्राइस को रेट बोलते हैं, सो लेबर रेट. और लेबर के टाइम को एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं, सो लेबर एफिशिएंसी. यहाँ पे आ जाए. ओवरहेड का जो रेट है, इट एक्चुअली शोज योर स्पेंडिंग, सो इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग. और इसका जो टाइम है, once again सेम टाइम जो लेबर का होता है, सो इट इज कॉल्ड एज ओवरहेड एफिशिएंसी. So these are the 6 variances. We will be starting in a few minutes. नाम सबके क्लियर हो गए? Done? आसान थे. So let's move on and let's see how would we actually calculate these things. अब इसको calculate किस तरह करेंगे? मैं सबको rub out करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से आपने calculation करना है. थोड़ा सा attention दीजिएगा for not more than 5 minutes and you will be able to calculate these variances. और आपको फिर सारी वर्ड्स के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको पता होगा कि फॉर्मूला किस तरह का है. ठीक है? फॉर्मूला किस तरह. हमने कहा दो चीजें ना, प्राइस क्वांटिटी. ओके, दो चीजें हैं, प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी. ठीक. फिर हमने कहा था कि वेरिएंस का मतलब क्या है. वेरिएंस का मतलब है एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड का डिफरेंस. सो दैट मींस ओवर हियर यू विल हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस. और उसमें दो चीजें आएंगी, एक्चुअल का डिफरेंस, स्टैंडर्ड डिफरेंस. क्लियर हो गया? ओके. प्राइस मैंने कहा दो चीजों का डिफरेंस. कौन कौन सी चीजें? प्राइस, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड. एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड. इसका मतलब एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस. दो चीजें आपके पास आ गई, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस. ओके. और ये जो है वेरिएंस जो है वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा. एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का डिफरेंस आएगा. दैट वुड बी योर प्राइस वेरिएंस. आगे चलते हैं. जब भी आप लोग फाइंड आउट करेंगे वेरिएंसेस को, प्राइस, क्वांटिटी ना, प्राइस एंड क्वांटिटी. सो एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड इन दिस मार्केट, तो आप लोग क्या करेंगे कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मार्कर के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो कितने का था. इसी तरह होता है ना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ना. प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी वुड टेल यू अबाउट द अमाउंट व्हिच इज स्पेंट ऑन दिस मार्कर. गुड. ये भी हो गया. हमने कहा दो चीजों का, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड का. अब आपने दो चीजें याद रखनी है, एक्चुअल स्टैंडर्ड, प्राइस क्वांटिटी. सो एक्चुअल प्राइस और फिर हमने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, तो मुझे पता चलेगा कि कितना इसमें इस्तेमाल हुआ इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. क्लियर हो गया? अब आ जाए इस एच. ये स्टैंडर्ड हमने कहा दो चीजों का डिफरेंस है ना, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड. ओके. सो ओवर हियर स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ये बात क्लियर हो गई? ये स्टैंडर्ड हो गया. अब आ जाए यहां. ठीक. इसको फिलहाल मैं लिख रहा हूं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. इसका लॉजिकल रीजन भी है और इसको याद करने का तरीका भी है, दोनों चीजें. ठीक. पहले लॉजिकल रीजन सुनेंगे या पहले याद करने का तरीका सुनेंगे? पहले लॉजिकल रीजन. लॉजिकल रीजन. अब लोग अक्सर पूछते हैं, सर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लिखा, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लिखा? इसको यू कर लेते हैं ना, इसको यू कर सकते. हो सकता है ना, हो सकता है. लेट्स फाइंड आउट कि हमने इसको यू किया. ये वाला जो वेरिएंस है इस तरह, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? प्राइस के बारे में. ठीक है. प्राइस वेरिएंस के लिए हु इज रिस्पांसिबल? परचेज मैनेजर. परचेज मैनेजर प्राइस के लिए जो परचेज करता है, परचेज मैनेजर. क्वांटिटी के लिए हु इज रिस्पांसिबल? प्रोडक्शन. दोनों चीजें क्लियर. अब आ जाए वापस इसलिए. अब अगर मैं आपसे ये कहूं
कि ये एक वेरिएंस है और ये वेरिएंस है प्राइस का वेरिएंस। प्राइस की वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करता हूं एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस से। और आप कह रहे हैं कि सर आपने इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? ठीक, तो मेरे पास रीजन इसका क्या है, क्योंकि यही सेम चीज मैं उठाकर यहां पे भी लिखता हूं और इसको इस स्टैंडर्ड से माइनस कर देता। ये मैंने ये क्यों नहीं लिखा? ये प्राइस का वेरिएंस है। प्राइस की वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर इज रिस्पांसिबल। परचेज मैनेजर इज रिस्पांसिबल, ठीक है। परचेज का जो मैनेजर है वो रिस्पांसिबल है इसके लिए, और इसके लिए रिस्पांसिबल है प्रोडक्शन का मैनेजर। प्रोडक्शन का मैनेजर जो है वो क्या काम करता है? प्रोडक्शन का मैनेजर प्रोडक्शन करता है। तो जब प्रोडक्शन करता है तो वो किस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है? क्वांटिटी को। कौन सी क्वांटिटी को? एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्या चीज है? स्टैंडर्ड। ये कहां पे लिखी होती है ये बात? रिपोर्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ये तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से ले लूंगा। फिर मैं ये देखूंगा कि ये जो प्रोडक्शन का मैनेजर है ये प्रोडक्शन कर रहा है तो ये कितना मटेरियल या लेबर या जो भी है कितना एक्चुअली इस्तेमाल करता है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं उसकी स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। एक्चुअल प्राइस से आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करता तो क्या वो प्रोडक्शन मैनेजर के कंट्रोल में होता? तो फिर उसके लिए मैं प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पांसिबल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है, अब आ जाएगा। मैंने यहां पर लिखा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये क्या चीज है? एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस के लिए कौन रिस्पांसिबल है? परचेज मैनेजर। ये प्राइस वेरिएंस है। प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है? परचेज मैनेजर। तो जो एक्चुअल प्राइस है वो इस साइड पे क्योंकि परचेज मैनेजर इज रिस्पांसिबल। एक्चुअल क्वांटिटी के लिए कौन रिस्पांसिबल है? प्रोडक्शन मैनेजर। तो एक्चुअल क्वांटिटी इस साइड। So that's the reason I write actual quantity to standard price and not standard quantity into actual price because then it would be wrong. ठीक है, ये लॉजिकल है। अब याद करने के लिए आप कहेंगे सर याद कैसे करें? आप गौर से प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं ना हमेशा, ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आपने पहले वाले में क्या करना है? ये तरफ एक्चुअल, ये तरफ स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। इस तरफ लिख दें स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड। ये दो तो आसान है। अब ये जो ये वाला है इसको याद कैसे करें? इस वाले को, तो ये दोनों सेम होते हैं। देखिए इसको कैसे याद करें? एसपी होता है, एसपी, हाँ, सुपरिटेंडेंट पुलिस, एसपी होता है ना। सो एसपी मतलब याद करें। That's the way I've learned it all my life and I still remember. ठीक है, I studied that back in 2001. ठीक है, मुझे अभी तक से याद, यही तरीका याद रखा है, इसी तरह याद किया है, इसी तरह याद। सर अगर दोनों लिख लें, PQ पहले आता है तो सेकंड इस तरह कर, जिस तरह आप करना चाहते हैं, it's totally up to you. Find a way to learn this. इधर हम बेसिकली Because there are 6 formulas. 6 formulas. ये एक फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, ये हर जगह इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा? This is price. ये डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है। अगर आप डायरेक्ट लेबर का वेरिएंस करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस। इसमें क्या फर्क आएगा? एक्चुअल प्राइस, उसको हम एक्चुअल प्राइस बोलते हैं, रेट रेट। तो ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी को लेबर में वो तो वेरिएंस का नाम है ना। जब वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटिटी क्या होती है उधर? तो टाइम आवर्स। टाइम तो है लेकिन टाइम को आवर्स में डिनोट करते हैं ना, तो एक्चुअल आवर्स ये बन जाएगा, ठीक, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट। ये हो गया। अब आ जाए इधर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट, माइनस स्टैंडर्ड प्राइस,
स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब चल जाए वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड के इस वेरिएंस को क्या बोलते हैं? प्राइस वेरिएंस को। तो लेवल नाम बताएं। रेट होता है, लेकिन उस रेट को मैंने क्या बताया? स्टोरी बताई थी कि वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, एक्चुअल रेट, वहां पे भी रेट इस्तेमाल करते हैं, रेट, एक्चुअल आवर्स, वहां पे भी आवर्स इस्तेमाल करते हैं, आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, यानी फॉर्मूला इन दोनों के फॉर्मूले सेम है, ठीक है? प्राइस का PQ में आ जाएगा, इसका आवर्स और रेट में आ जाएगा। और इस वेरिएंस को क्या बोलते हैं? VOH के। VOH के क्वांटिटी वाले वेरिएंस को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। लेबर के क्वांटिटी वाले वेरिएंस को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। लेबर के मटेरियल की क्वांटिटी वेरिएंस को क्या बोलते हैं? मटेरियल। ठीक, ओके, फॉर्मूला सेम। इसका मतलब अगर आपने इसका जर्नल याद कर लिया, ये जर्नल शुरू में बताया, तो आपको 6 फॉर्मूले याद करने से बच जाएंगे। और अगर नहीं, आप कहते हैं कि सर ये आप वैसे ही लगे हुए हैं और हम इस तरह याद करते हैं, सो दैट टोटली अप टू यू। मैंने आपको आसान तरीका सिखा दिया, लॉजिक बता दी दोनों की, ठीक है? नाउ इट शुड बी ओके। सो देयर आर 6 फॉर्मूलास राइट नाउ। इसके आगे और भी आएंगे, उनके भी शॉर्टकट्स आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से याद कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलास। इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक, फॉर्मूली, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं याद तो फिर आपको पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन में से फिगर्स उठाने पड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आज के लिए यार हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना, एक कर सकते हैं, एक कर देते हैं, ज्यादा है, 2 क्लास 5 दादरिम क्लास, दादरिम जो ध्वनु दादरिम देगा क्या? और दादरिम ध्वनु नदी योर सर को अरेंज 5 बच्चों को सर Do you get this thing? सर इसमें हम प्रोडक्शन को मोस्ट लाइकली मेजर करेंगे, जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन से। देखिए ये प्रोडक्शन की साइड होगी, ये सॉरी ये तो प्राइस, ये परचेज की साइड होगी, ये प्रोडक्शन की साइड होगी, ठीक है? ये दोनों अलग है, परचेज प्रोडक्शन। Okay, so now let me give you a recap of this formula, how do we come up with this formula. We said there are 2 things, price and quantity. Then we said there are 2 things, actual and standard. ठीक है? So actual, standard, price, quantity. लिख दिया? फिर ये price वाली, ये actual, अब ये actual price वाली साइड है, क्योंकि actual price is controlled by the price variance वाला मैनेजर। price variance का मैनेजर कौन सा है? परचेज का मैनेजर। तो ये परचेज मैनेजर की साइड है, ये प्रोडक्शन मैनेजर की साइड है, ये क्वांटिटी वाली साइड, ठीक है? सो एक्चुअल प्राइस यहां पर है और प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस साइड इज एक्चुअल, सो राइट ए एबी ए, ये हो गया। इसी तरह ये स्टैंडर्ड वाली साइड है, तो एसपी एसपी यहां पर आ जाए, ये भी आ गया, अब यहां पर आ जाए। अब ये दूसरी चीज आपने लिखी, ठीक, क्योंकि ये प्राइस वाली साइड है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लिखेंगे। यहाँ पर एक्चुअल प्राइस नहीं लिख सकते, इसलिए ये प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड ही होगी। स्टैंडर्ड प्राइस एट एक्चुअल क्वांटिटी, सो एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर लिख देंगे। इसकी बेस पे आप ये 2 बना सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज रिप्लेस प्राइस विद रेट एंड क्वांटिटी विद आवर्स, ठीक। रीजन लॉजिकल क्या है, क्यों स्टैंडर्ड प्राइस लिया, एक्चुअल प्राइस नहीं लिया? क्योंकि ये सेम यहां पर लिख रहा हूं और ये अगर यहां पे एक्चुअल आ गया तो ये इसके कंट्रोल में नहीं होगा। दिस इज प्रोडक्शन मैनेजर हु इज कंसर्न्ड विद एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस। अगर फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एसपी को याद रखिएगा कि एसपी यहां पे लिखना है, के इक्वल टू एसपी, सेम यहां पर लिखना है। ये आपके 6 फॉर्मूलाज हो गए व्हिच यू नीड टू नो फॉर वेरिएंस एनालिसिस, फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। जी यस,
उसकी कंट्रोल में तो ये, उसकी कंट्रोल में ये है ना, ये, ठीक है, एक्चुअल प्राइस उसकी कंट्रोल में। तो एक्चुअल प्राइस मार्कर में बनाएं। मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा यार इस मार्कर को बनाएं, इसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी लगेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे बेसिक्स में। एक बंदा है जो मार्कर के लिए मटेरियल खरीदता है, तो वो कंसर्न है सिर्फ एक्चुअल प्राइसेस। अब इस मार्कर के ऊपर कितनी प्राइस का मटेरियल आया और कितनी क्वांटिटी लगी, तो मुझे पता चलेगा कि एक मटेरियल, एक मार्कर के ऊपर कितने पैसे लगे मटेरियल के। एक्चुअल हो गया। अब मैं लिखना चाहता हूं कि स्टैंडर्ड क्या कहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि इसके ऊपर 4 रुपए पर किलो के हिसाब से मटेरियल लगे, ठीक। अब 4 रुपए पर किलो मटेरियल तो लग गया, लेकिन क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल की, क्वांटिटी कितनी आपने इस मार्कर पे क्वांटिटी लगाई, 1 किलो। तो 1 किलो की प्राइस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कितनी है और 1 किलो की प्राइस एक्चुअल कितनी है। तो ये आपको पता चलेगा कि क्या परचेज मैनेजर ने अच्छा काम किया या बुरा। सही है, नाउ इज इट क्लियर? सो दैट्स हाउ। और याद रखिएगा ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूं ना, ये थ्योरी, ये मैं एग्जाम में पूछता हूं। मार्क एक ही होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, बट आई वुड आस्क यू फॉर द रीजन। मैं रीजन आपसे जरूर पूछूं। अब आप कहेंगे सर इसमें फेवरेबल अनफेवरेबल कैसे पता चलेगा? ये फिगर बढ़ाओ तो फेवरेबल, ये फिगर बढ़ाओ तो, ये क्या चीज है? एक्चुअल। एक्चुअल अगर ज्यादा हो जाए इससे तो फेवरेबल है, अनफेवरेबल। एक्चुअल ज्यादा हो गया स्टैंडर्ड से तो अनफेवरेबल। अब आ जाए, अब इसमें कौन सा फिगर बड़ा हो गया तो फेवरेबल? नहीं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अगर ज्यादा है और आपने काम कम पैसों में कर दिया, सो दैट मींस यू आर फेवरेबल। सर गॉट इट जी। सर अगर आंसर 0 आए तो फिर स्टैंडर्ड से मीट करेगा? अच्छा, नॉर्मली नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना कि आपने जो स्टैंडर्ड रखा है वही काम हो जाए, लेकिन शायद हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन वुड बी देयर। 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, हाँ वेरिएशन बहुत बड़ी है, इट्स नॉट गुड। 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए की वेरिएशन है, सही है, एक्सेप्ट जी। एक्चुअल प्राइस की तरफ क्यों जा रहे हैं और स्टैंडर्ड्स क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं? व्हाई कांट इट बी स्टैंडर्ड प्राइस standard quantity minus? Because standard price into standard quantity is purely standard, because it's in the standard card, so that's why it's on the standard side. Okay? But when you make a marker, once again the same example how I explained it to Kesar, the same example कि इस मार्कर के ऊपर कितना मटेरियल लगा, उसके लिए एक्चुअल क्वांटिटी लेनी पड़ेगी मल्टीप्लाइड विद द एक्चुअल प्राइस, and you would know the amount of material which is being used on one marker. Now I need to compare with the standard. ठीक, अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो then it makes no sense. ये तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस ही होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही होनी चाहिए, लेकिन असल में तो आपने वो क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं की ना, असल में तो आपने एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल की। तो ये देखें कि एक्चुअल क्वांटिटी के मुताबिक आपने कितने पैसों का मटेरियल इसके ऊपर लगाया। सो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड। तो सर फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाई शुड वी टेक एस्क टू एस्क? व्हाई यहाँ पे जब हम प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल कितनी आ रही है, यहाँ स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक्चुअल है ना और ये स्टैंडर्ड को शो कर रहा है। एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस, ये इसको शो कर रहा है। एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस, ये शो कर रहा है एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल प्राइस, प्योरली एक्चुअल। रुके इसको कंप्लीट करें, इसको तो कंप्लीट करें ना, क्वेश्चन नहीं करें, इसको कंप्लीट। ये सही जो मैंने अभी आपको बताया सारा उसका रीकैप। सो एक्चुअल क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्चुअली। सही है, एक्चुअल क्वांटिटी। आगे जाएं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर, ठीक है सर, standard quantity allowed for the actual output of the period. Standard quantity at actual output. ठीक, ये हो गया। आगे चले, actual price is amount actually paid. सही, okay. Standard price is amount that should have been paid for them.
ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये भी क्लियर हो गया। आगे चले, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं and we come up with the formula. These are the formulas which are written over here. Okay. So we need to start from here inshallah in the next class. We missed one class, तो वो आपको कवर अप करनी पड़ेगी। उसके अलावा 2 क्लासेस